A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the volume 2 of part A, that is an company's account. As you know very well, the company's account are divided into the three chapters. The first one is the issue, forfeiture and reissue of share. Number second is issue of debenture, and number third is redemption of debenture. But due to the COVID-19, you know very well, your syllabus will be reduced to up to the 30%. That's why the redemption of debenture chapter will be eliminated from your syllabus for the session 2020-21. So now we are moving to the next topic of the volume 2 of part A of class 12th accountancy, that is an issue of debenture issue of debenture on condition of redemption. You know very well, debenture are issued by the company for arranging a debt fund when sufficient funds are not arranged through the issue of share. So in this situation, company issue a debenture and arrange the money. But the debenture is an acknowledgement of debt. It is a written acknowledgement of debt issued by the company in return of the taken of the loan from the public. Basically, you know very well, in debentures, holder have a right to receive a specified interest on the debenture, as well as the debenture include the specified period of redemption. It means जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो ये पहले से प्री डिटरमाइन करती है कि वो डिवेंचर कितने साल के लिए इशू कर रही है. इट मीन्स whenever a company issued its debenture, it is a very clearly instruction given by the company कि हम डिवेंचर कैसे इशू करेंगे और कैसे उसको रिडीम करेंगे. So basically this topic is totally discussed the issue of debenture as well as the condition of the redemption. So basically, if you are talking about the issue of the debenture, so you know very well, if you are talking about the issue of debenture, so you know very well, company can issue its debenture by the following three prices, any of the three prices. The first one is at par, at premium, and at discount. It means company can issue its debenture any of the following three prices. 100 का डिवेंचर 100 पे इशू किया, सो इट विल बी नोन एज द इशू ऑफ डिवेंचर एट पार. 100 का डिवेंचर 110 पे इशू किया, सो इट विल बी नोन एज एन इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम. एंड 100 का डिवेंचर 90 पे 95 पे इशू किया, इट विल बी नोन एज द इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट. As well as if you are talking about the condition of the redemption is the payback money of redemption, payback money of the debenture. So there are basically two conditions which are related to the redemption of debenture. What is redemption? Pay back the money. यानी जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो पैसा अरेंज करती है, पैसा लेती और आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड वो पैसे को लौटाती है. उस पैसे को लौटाना क्या कहलाता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंपनी दो तरीके से करती है, पार पे और प्रीमियम पे. यानी जब वो अपने डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटाएगी, रिटर्न करेगी, तो 100 रुपए रिटर्न करेगी या 100 रुपए से ज्यादा रिटर्न करेगी, 100 से कम रिटर्न नहीं करेगी. सो इशू के तीन तरीके हो सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और रिडम्पशन के दो तरीके हो सकते हैं. सो सारे कंडीशन को एनालाइज करने के बाद कंपनी अपने पूरे इशू ऑफ डिबेंचर को रिडम्पशन के कंडीशन के साथ ज्वाइन करती है. वो क्या कंडीशंस हैं, वो क्या सिचुएशन है, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट. सो द जर्नल एंट्रीज ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर in terms of the redemption conditions. So the topic is general entries on issue of debenture
in terms of redemption, यानी रिडम्पशन के टाइम क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे. सो दे आर बेसिकली फ्यू सिचुएशन which are related to this topic. The first one is issued at par and redemption at par. It means 100 रुपए का डिबेंचर इशू करेंगे, मिलेगा 100 रुपए और रिटर्न भी कितना करना है 100 रुपए. Second situation, issued at par and redemption at premium, यानी हम कितने का डिबेंचर इशू करेंगे 100 का, यानी मिलेगा 100 रुपए, लेकिन लौटाते वक्त हमें कितना देना पड़ेगा more than 100, more than the face value, suppose 110. The third condition, that is an issue at प्रीमियम, हमने इशू किया प्रीमियम पे बट हम उसका रिडम्पशन किस पे करेंगे पार पे, यानी कि इशू करेंगे हम मोर देन द फेस वैल्यू, लेकिन जब वापस लौटाना होगा तो हम फेस वैल्यू लौटाएंगे, दैट इज एन पार. द फोर्थ कंडीशन, दैट इज एन इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन इज आल्सो प्रीमियम. ओके सर, इसमें तो सेम चीजें हो गई, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है. सपोज हमने इशू किया 10% प्रीमियम पे, रिडम्पशन किया 5% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम तो दोनों ही सिचुएशन में है, बट द रेट ऑफ द प्रीमियम विल बी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द सिचुएशन. इशू पे भी डिफरेंट है, रिडम्पशन पे भी डिफरेंट है. सो सपोज आपने 10% प्रीमियम पे इशू किया, सो यू विल रिसीव द 110 रुपीज, बट वही डिबेंचर अगर आप 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, सो द वैल्यू इज 105. ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. Next condition, issue at discount and redemption at par, यानी आप इशू करोगे 90 पे और आपको रिडम्पशन कितने पे करना पड़ेगा 100 पे, लेस देन द फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन एट द फेस वैल्यू. एंड लास्ट सिचुएशन इज इशू एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पे इशू किया लेकिन जब पैसा वापस करना हुआ तो आपको प्रीमियम पे रिटर्न करना पड़ा मोर देन द फेस वैल्यू. जैसे आपने 90 रुपए पे डिबेंचर इशू किया बट रिटर्न करते वक्त आपको 110 रुपीज देंगे. सो देयर आर बेसिकली 6 कंडीशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और इन 6 कंडीशन की हम 1 by 1 जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे कि कंपनी किस तरह से एंट्री पास करती है. सो नाउ the first situation is issue at par and redemption at par. तो सिचुएशन में एंट्री क्या होती है हम एंट्री पे भी डिस्कस करते हैं 1 by 1. तो आप अपने कॉपीज में 1 by 1 उसको क्या करते रहना, नोट डाउन करते रहना, और उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो द जनरल एंट्री ऑफ फर्स्ट सिचुएशन, बेसिकली एक ही एंट्री पे भी काम खत्म हो सकता है, लेकिन 2 एंट्रीज बेसिकली याद रखिएगा आप लोग, ठीक है. जनरल एंट्री कैसे करना है सिचुएशन में. So these are the 6 condition where we are talking about the issue of debenture on in terms of redemption. So the first case will be a issue at par and redemption at par. आपने डिबेंचर इशू किया इस पे पार पे, यानी मिलेगा कितना आपको 100 रुपए. तो एंट्री क्या करोगे आप लोग फर्स्ट कंडीशन में, बैंक अकाउंट. फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कितना रुपए मिला आपको 100 and 100. रिडम्पशन भी किस पे करना है, पार पे करना है सर, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस. ना अभी आपको ज्यादा मिला, ना आपको देते वक्त ज्यादा देना है, ना कम मिलने वाला है, वॉट एवर. सो इस सिचुएशन में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सीधे एंट्री आपको पास कर देनी है. ये 2 एंट्री, पहले पैसा रिसीव करो फिर पैसे को ट्रांसफर कर दो टू द डिबेंचर. So in the first situation, the 2 entries will be passed. The first entry, that is the bank account debit to person debenture application allotment, and the second entry, that is in person debenture application allotment account debit to person debenture.
This is in first case. Now we are moving to the second. मैं इसको बॉक्सेस में बंद करते रह रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. कंडीशन नंबर बी. कंडीशन नंबर बी इज इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. इशू करते वक्त कितना मिलेगा? 100 रुपए. सो सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. यानी इशू करते वक्त आपको मिलेगा कितना? 100 रुपीज. लेकिन जब आपको रिडम्पशन करना है तो 110 रुपए देने हैं. इसका मतलब आपको 10 रुपए का रिडम्पशन के टाइम आपको लॉस होने वाला है. यानी 10 रुपए आपको रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा देने. सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कितना मिला? हमको मिला 100. डिबेंचर में कितना ट्रांसफर करोगे? 100. ध्यान से देखना, एप्लीकेशन लॉट और डिबेंचर की सेम एंट्री, कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है. ओके. लेकिन यू नो वेरी वेल ये रिडम्पशन किस पे? प्रीमियम पे. प्रीमियम किस पे? रिडम्पशन पे. तो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. याद रखना किस नाम से इसको अकाउंट खोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. कितना देना है आपको? प्रीमियम 10 रुपए. एंड इट इज अ प्रॉफिट और लॉस? इट इज अ लॉस. सो उसको हम लोग डेबिट करेंगे. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. चाहे इशू का डिबेंचर हो, इशू का प्रीमियम हो, चाहे रिडम्पशन का प्रीमियम हो, दोनों ही क्रेडिट होता है. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो यू कैन सी दैट इन द सेकेंड सिचुएशन द जनरल एंट्री in the situation issue at par redemption premium is bank account debit to person debenture application allotment 100 and the second entry that is in purchase person debenture application allotment debit 100, loss on issue of debenture debit 10, person debenture 100 and premium on redemption of debenture that is in 10. Okay, so now we are moving to the third situation. So the third situation will be a issue at premium. इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार. इशू किस पे किया? प्रीमियम पे. रिडम्पशन किस पे करना है? 100 पे. यानी एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग मनी आपको कितना मिला? 110 रुपए. तो पहले पैसा तो रख लो. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कितना मिला आपको? 110. 110. द सेकेंड रिडम्पशन किस पे करना है? पार पे. रिडम्पशन किस पे करना है? पार पे. लेकिन आपको 10 रुपए फायदा तो हुआ, तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम पे. सो द एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 टू डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10. ओके. 110 जिसमें 100 रुपीज डिबेंचर का, 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. एंड नाउ यू नो वेरी वेल आपको रिडम्पशन पे कितना रुपए पे करना है? 100. सो कोई इशू नहीं है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. ये एंट्री आपके पास आ गई. ओके. सो प्लीज नोट डाउन ऑल द 3 एंट्रीज इन योर कॉपी प्रॉपरली एंड देयर आफ्टर वी आर मूविंग टू द next 3 condition number D, E and F. Okay, so the next condition is condition number D. Condition number D will be a issue at premium and redemption at premium. Okay, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. और इसमें आप लोग देख रहे होंगे जब भी डिबेंचर इशू हुआ है तो 110 पे इशू हुआ है, और जब उसको रिडम्पशन कर रहे हैं तो उसको दे कितना रहे? 105 रुपए दे रहे हैं. यानी जब रिसीव किया हमने पैसा, सो द एंट्री विल बी अ बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपीज. जब हम सेकेंड एंट्री करते हैं ट्रांसफर वाली, वो थोड़ी सी देखने वाली रहेगी. यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 110 मिला, बट हम डिबेंचर में कितना शो कर सकते हैं? मैक्सिमम
डिबेंचर में फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू क्रेडिट नहीं कर सकते. सो 100. ओके, इशू पे हमें प्रीमियम मिला, कितना मिला? 100 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपए मिला. सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट इज 10. एंड रिडम्पशन पे आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है. रिडम्पशन पे 5 रुपए आपको क्या देना है? एक्स्ट्रा देना है. और ये क्या है? लॉस है. सो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना देना है? 5 रुपीज. एंड दिस 5 रुपीज इज अ लॉस फॉर द कंपनी, नॉट फॉर द टेनेंट, क्योंकि 10 रुपए तो हमें इशू के टाइम मिला. रिडम्पशन में 105 देना है, तो 100 से कितना ज्यादा देना है? 5 रुपए. तो वो आपके लिए लॉस हो गया. सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर will be of 5. So this is the two entries which are related to the condition number D, issue at premium and redemption at premium. It is a very important topic for your examination. So I request to all the students, kindly please make a proper notes in your copy. Now we are moving to the condition number E, issue at discount and redemption at par. यानी issue पे टाइम आपको कितना मिलेगा? 90 एंड रिडम्पशन के टाइम आपको कितना देना है? 100. सो इशू के टाइम एंट्री क्या होगी? दैट इज इन बैंक अकाउंट डेबिट 90, 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, एंड देयर आफ्टर आप इसको ट्रांसफर करोगे परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितना मिला? 90. डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 100. सो ये 10 रुपए आपका क्या है? डिस्काउंट है. और रिडम्पशन पे आपको कितना देना है? 100 रुपए देने हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं है. जब आपको रिडम्पशन पे 100 से ज्यादा देने होंगे तभी आपके लिए लॉस होगा. यहां पर आपको 5 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट का हो गया, बस उसको आपको डेबिट करना है. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 10. ओके सर, बहुत इजी है. नाउ वी आर मूविंग टू द कंडीशन नंबर एफ. कंडीशन नंबर एफ विल बी अ इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. सेम इशू तो वही है, रिडम्पशन पार की जगह प्रीमियम हो गया, यानी मोर देन द फेस वैल्यू, यानी ये लॉस क्रिएट हो रहा है. यानी इशू पे 10 रुपए का लॉस हो गया और रिडम्पशन पे 10 रुपए का लॉस हो गया. इशू में 10 रुपए कम मिला, रिडम्पशन में 10 रुपए ज्यादा लेना है, टोटल लॉस विल बी 20. सो अगर आप ई कंडीशन को अच्छे से समझे हैं तो एफ एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दैट इज इन 90 एंड नंबर सेकेंड रिडम्पशन के टाइम आपको कितना देना? 110, यानी परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना है? 90 टू परसेंट डिवेंचर विल बी 100. और रिडम्पशन के टाइम क्या है? प्रीमियम. रिडम्पशन वाले प्रीमियम को क्या लिखते हैं? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना है? 10, क्योंकि इशू के टाइम डिस्काउंट था और रिडम्पशन के टाइम क्या है? प्रीमियम. ओके, सो यू कैन सी दैट इशू के टाइम 10 रुपए कम मिला, रिडम्पशन टाइम 10 रुपए ज्यादा देना है, तो टोटल मिलाकर आपका हो गया लॉस. सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इट विल बी टेकन एज 20. यहां पर सिर्फ डिस्काउंट था, सो हमने सिर्फ डिस्काउंट शो किया, लेकिन जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो गया तो डिस्काउंट, इशू वाला डिस्काउंट, रिडम्पशन वाला प्रीमियम दोनों मिलाकर हो गया लॉस. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट and very important 6 cases where we record the issue of debenture in terms of redemption, and these conditions are issued at par, redemption at par, issued at par, redemption at premium, issued at premium and redemption at par, issue at premium and redemption at premium, issue at discount and redemption at par, issue at discount and redemption at premium. Okay, so now let's we take the few numerical questions to clarifying all these things. So let's we take the few question which are related to this topic. The topic is issue of debenture
for in terms of the condition of the redemption. So the question is, give journal entries in each of the following situation, assuming face value of debenture is ₹100. यानी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है हर सिचुएशन में, और ये एज्यूम करना है कि डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 100. सो द फर्स्ट सिचुएशन इज 209% डिवेंचर issued at ₹100, payable at ₹90. 105. Number second, 511% debenture issued at par, payable at 5% premium, payable at 10% premium. थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है. ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी 412% debenture issued at 10% discount, payable या redeemable, payable at 5% discount. ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं जहां स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो उसमें मैंने पहला जो सिचुएशन लिया उसको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, आप सभी लोगों के लिए एनालाइज करना जरूरी है. जिसमें पहला सिचुएशन है कि जिसमें हम इशू कर रहे हैं पार पे और रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे. ये पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है. प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे ही रिडम्पशन हो रहा है. डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है. सॉरी, प्रीमियम होगा. ओके, सो इसका सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन. सॉल्यूशन, पहला कंडीशन देखते हैं. 209% डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का, पेबल है 105 रुपए पे. सो द जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट केस. द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 209% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. अमाउंट कैसे लिखेंगे? इशू किस पे हो रहा है? 100 पे, तो 200 into 100. So this is 20,000. The second entry of the case one will be a payable as 105. तो you know variable redemption पे प्रीमियम है और ये आपके लिए लॉस है. So the entry will be a 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से मिला हमको 20,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए एक्चुअल फेस वैल्यू भी है डिवेंचर की. 200 डिवेंचर है और डिवेंचर की वैल्यू है 100. सो द वैल्यू इज 20,000. रिडम्पशन किस पे है? 105 पे, यानी 5 रुपए प्रीमियम का हो गया. सो प्रीमियम को हम लोग करते हैं क्रेडिट. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर, it will be a 200 multiplied by 5. Okay, that is a 1,000. and loss कितना हो गया हमारे लिए? 1,000. so the debit is loss on issue of debenture is 1,000. Okay, I hope it is clear for you. Let's we take the condition number 2. Condition number 2.
What is the condition number 2? 511% debenture issued at 5% premium payable at 10% premium. So पैसा मिला हमको बैंक अकाउंट डेबिट to 11% debenture application and allotment. How many debenture? 500. What is the face value of the debenture? Is 100. 100 का 5% प्रीमियम कितना हुआ? 105. Okay. So the value is 0, 0, 22,500. The second entry, 11% debenture application and allotment debit 22,500 to रिडम्पशन किस पे करना है? 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है to 11% debenture 500 into 100 that is an, यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, ये वैल्यू होगी 0, 0, 52,500 एंड 11% की वैल्यू कितनी है? 50,000 एंड इशू पे प्रीमियम कितना है? इशू पे प्रीमियम बताइए फटाक से, इशू पे प्रीमियम कितना है? इशू पे प्रीमियम है 5%. सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट इज एन 5 into 500 2,500. और रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है? 10. तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10%. किसका 10%? 50,000 का 10% दैट इज इन 5,000. और उसको क्या करेंगे? डेबिट. डेबिट क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी आपको रिडम्पशन पे कितना देना है? 10% प्रीमियम. तो ये लॉस हो गया आपके लिए. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी चीज को बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाना है, उसको इजी बना के चलना है. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. द थर्ड वन, 412% डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट पेबल एट 5% प्रीमियम. ओके, तो उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं. केस नंबर 3. केस नंबर 3 की एंट्री नंबर 3 क्या हो रहा है? इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे. सो द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 400 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिस्काउंट है, तो 100 का शेयर है तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 36,000. ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज पेबल एट 5% प्रीमियम, यानी इशू हो रहा है 10% डिस्काउंट पे, तो 10 रुपए लॉस हो गया. रिडम्पशन हो रहा है 5% प्रीमियम, तो 5 रुपए लॉस हो गया. टोटल मिलाकर लॉस कितना हो गया? 15% लॉस हो गया. तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट. ये एंट्री दिख रही है आप लोग को, वैसे ही यहां पे भी एंट्रीज होंगी. नंबर 2, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एंड द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 400 into 100. फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं 40,000. और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हुआ? 36,000. 4,000 रुपए का डिस्काउंट है और प्रीमियम कितना बोला है? 5%. सो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट. रिडम्पशन पे है, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वैल्यू इज 5%, सो 400 into 5, 2,000. सो टोटल 4,000 इशू का एंड 5% प्रीमियम है, तो 2,000 रिडम्पशन का. टोटल हो गया 6,000. इसको हम लोग डेबिट कर देंगे एज एन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. यानी डिबेंचर को इशू करने पे हमें टोटल लॉस कितना हुआ? 6,000 रुपए. कैसे? 10% इशू के टाइम हमें डिस्काउंट बियर करना पड़ा और 5% प्रीमियम बियर करना पड़ा एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन.
So total 15% on the 40,000 will be taken as a loss. So I request all the students kindly make a proper notes in your copy because it is a very important topic for your examination. और एग्जामिनेशन में पक्का इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली. सो प्लीज नोट डाउन करिए. एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स देखिए यही दो जगह क्रिएट होता है. एक इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम और दूसरा इशू एट डिस्काउंट एज वेल इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. दो जगह ही यहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होती हैं लोगों से, जहां दोनों साइड प्रीमियम हो, इशू भी प्रीमियम पे हो, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो. या दूसरा आपका मिस्टेक होता है इशू हो डिस्काउंट पे और रिडम्पशन हो प्रीमियम पे. और ये केसेस अगर पेपर का लेवल हार्ड रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे. ओके, सो इन टुडेज वीडियो फर्स्टली वी डिस्कस्ड द 6 cases which are related to the issue of debenture in terms of the redemption, and the condition are issued at par, redemption at par, issued at par, redemption at premium, issued at premium, redemption at par, issued at premium, redemption at premium, issued at discount, redemption at par, issued at discount and redemption at premium. All the 6 cases are very important for your examination purpose. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको फिर से वीडियोस को बार बार देख लेना, नोट्स बना लेना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो आई होप